Namaste. Hamisha खुश रहो बेटिया. I am JV and Dr. Meenakshi, Assistant Professor in Department of Shavalakya Tantra, Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ पुणे यूनिवर्सिटी. आज का हमारा टॉपिक है एडिनॉइड्स. तो व्हाट आर एडिनॉइड्स? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा एनाटॉमी ऑफ एडिनॉइड्स. The synonym is the nasopharyngeal tonsil. Means adenoids are also called the nasopharyngeal tonsil. They are situated at the junction of roof and posterior wall of the nasopharynx. The features of adenoids are they are the vertical ridges of lymphoid tissue separated by deep clefts. There are no crypts present, no capsule. They are lined by ciliated columnar epithelium. Here you can see the image of the adenoids, which is encircled on the left side, and there is the enlarged image on the right side. Adenoid tissue is present at birth, shows physiological enlargement up to the age of 6 years. After 6 years, it undergoes atrophy at puberty and almost completely disappears by the age of 20. The blood supply of adenoids are ascending palatine branch of facial, ascending pharyngeal branch of external carotid, pharyngeal branch of the third part of maxillary artery, ascending cervical branch of the inferior thyroid artery of thyrocervical trunk. The lymphatic drainage, the lymphatics from the adenoid drain into upper jugular nodes directly or indirectly via retropharyngeal or parapharyngeal nodes. Here you can see the image of the lymphatic system. Then comes the adenoids. Adenoid is the hypertrophied mass of lymphoid tissue situated at the junction of roof and posterior wall of nasopharynx. The mass of lymphoid tissue is termed as adenoids only when it is hypertrophied. You can see the adenoid enlargement. The enlarged adenoid narrows the air passage. You can see clearly in the right image. Etiology: the recurrent attacks of rhinitis, sinusitis, or chronic tonsillitis may cause chronic adenoid infection and hyperplasia. Allergy of the upper respiratory tract may also contribute to the enlargement of adenoids. Clinical features of adenoids are symptoms and signs depend not only on the absolute size of the adenoid mass but are relative to the available space in the nasopharynx. Enlarged and infected adenoids may cause nasal symptoms, oral symptoms, general symptoms. First, the nasal symptoms are nasal obstruction, nasal discharge, sinusitis, epistaxis, voice change. The oral symptoms are the tubal obstruction. It blocks the eustachian tube and leads to conductive hearing loss, recurrent attack of acute otitis media, chronic suppurative otitis media, serous otitis media. General features are adenoid phases, pulmonary hypertension, apraxia, the lack of concentration. You can see the adenoid faces, the sunken eyes, narrow pitched nostrils, open mouth, high arched palate, crowded teeth, dull mask-like face, protruding teeth, drooling saliva, everted upper lip. Diagnosis is made by the examination of the postnatal space. Is possible in some young children, and adenoid mass can be seen with mirror. Soft tissue lateral radiograph of nasopharynx will reveal the size of adenoids and also the extent to which nasopharyngeal space has been compromised. Pink globular mass with vertical ridges on the posterior rhinoscopy. Here you can see the adenoids in the radiograph. Complications of adenoids are adenoid faces, otitis media with effusion, recurrent acute otitis media, chronic sinusitis, sleep apnea syndrome, decreased mental or physical development. Treatment of adenoid is medical treatment, adequate nutrition, breathing exercises, antibiotics, anti-inflammatory analgesics, antihistaminics, nasal decongestant drops. Then the surgical treatment is adenoidectomy. Thank you. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Namaste, Hamesha खुश रहो बिटिया. I am JV and Dr. Meenakshi, Assistant Professor in Department of Shalakya Tantra, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University. आज हम डिस्कस करेंगे द एनाटॉमी ऑफ एक्सटर्नल ईयर. ठीक है. इसने कहा था कि उसके भी 3 इसमें पार्ट्स होते हैं.
First is pinna, second is external auditory canal, third one is the tympanic membrane. तो पिन्ना हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, इस सेशन में डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ कॉन्का टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कॉन्का क्या बताया था हमने? व्हाट इज कॉन्का? कॉन्का मैंने बताया था एक होलो स्पेस होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के स्टार्ट होने से पहले, दैट इज कॉन्का। ठीक है, तो कॉन्का से लेकर हमारे tympanic membrane तक extend करती external auditory canal. Then what is the length of the external auditory canal? ठीक है, length of external auditory canal is 24 mm. ठीक है, along the posterior wall इसकी लेंथ होती है 24 mm and it is not a straight tube. ठीक है, मुझे लगता है कि स्ट्रेट है बट इट इज नॉट अ स्ट्रेट ट्यूब। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, बोनी पार्ट होता है। ठीक है, जो आउटर पार्ट होता है दैट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड मीडियली। ठीक है, जो बाहर का जो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है वो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, जो पीछे की तरफ होती है मीडियली होती है, और इनर पार्ट जो बोनी पार्ट है उसकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली। ठीक है, तो हमारे एक्सटर्नल कैनाल स्ट्रेट नहीं है, तो उसको स्ट्रेट करने के लिए वी हैव टू पुल द पिन्ना अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली। ठीक है, अपवर्ड, बैकवर्ड, लेटरली अगर हम पुल्ला को पिन करेंगे तो पिन्ना को पुल करेंगे तो it will make the external auditory canal straight. Next is the parts of the external auditory canal. There is cartilaginous part, second one is the bony part. ठीक है, in this image you can see the cartilaginous part and then is the bony part. ठीक है, this is the cartilaginous part and this is the bony part. ठीक है, it is the view of the right ear, frontal view of the right ear, and it is the transverse view, it is the top looking down. ठीक है, then first comes the cartilaginous part. The cartilaginous part of the external ear, it forms outer one third of the ear. ठीक है, जो हमारी एक्सटर्नल कैनाल है उसका वन थर्ड, आउटर वन थर्ड पार्ट होता है कार्टिलेजिनस होता है। अगर 24 mm का वन थर्ड करेंगे दैट इज 8 mm। द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ कार्टिलेज विच फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ पिन्ना। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो पिन्ना होता है और जो आउटर पार्ट में एक्सटर्नल कैनाल होते हैं वो एक सिंगल पीस ऑफ येलो कार्टिलेजिनस टिश्यू पे बने होते हैं। ठीक है, तो पिन्ना और कार्टिलेजिनस पार्ट सेम कार्टिलेज पीस का होता है। Then skin covering over the cartilaginous canal is thick and contains appendages like ceruminous glands, pilosebaceous glands and hair. ठीक है, तो कार्टिलेजिनस पार्ट के ऊपर जो स्किन होती है वो बहुत थिक होती है और उसमें तीन अपेंडेजेस मिलते हैं हमको। वो होते हैं सेरुमिनस ग्लैंड्स, सेरुमिनस ग्लैंड्स होती है हमारी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, और वो सिक्रीट करते हैं सिरोमिन, सिरोमिन को बोलते हैं हम वैक्स। ठीक है, सेकंड होती है पाइलोसिबेशियस ग्लैंड्स, थर्ड होते हैं हेयर। ठीक है, हेयर हमारे आउटर कैनाल में ही मिलते हैं, इसलिए जो फरंकल्स होते हैं वो भी हमको आउटर वन थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में मिलते हैं। इट इज फरंकल, इट इज द इंफ्लेमेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल। ठीक है, फरंकुलोसिस और फरंकल, इट इज अ first filled bump or painful inflammation under the skin, ठीक है, due to the inflammation of hair follicles। ठीक है, next we will discuss the ceruminous glands। ठीक है, what are ceruminous glands? These are the simple tubular coiled structure having the myoepithelium। ठीक है, they are located subcutaneously in the external auditory canal। These are the seborrheiferous glands or sweat glands, and the structure of the gland is the simple tubular, they are called structure, they have the myoepithelium, and the secretions is expressed into the root canal।
है, तो जो सिक्रीशंस होते हैं वो कैनाल के रूट में जाता है। ठीक है, इसमें सिरमनस ग्लैंड्स में दो लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक तो इनर सिक्रेटरी लेयर होती है सेल्स की जिससे सिक्रीशंस होता है। ठीक है, सिक्रीशंस आता है रूट कैनाल में। और जो आउटर होती है वो मायोपिथेलियम लेयर ऑफ सेल्स होती है। ठीक है, the watery white secretion initially dries up and gets oxidized and becomes sticky and dark in color। ठीक है, जो सिरमनस ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है, स्वेट ग्लैंड का सिक्रेशन होता है, वो पहले वाटरी होता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, वो ड्राई अप हो जाता है, फिर उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, तो उसकी वजह से वो स्टिकी हो जाता है, डार्क कलर का होता है। दे आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स एंड रिएक्ट टू सेम स्टिमुलाई एज अदर एपोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और जैसे एपोक्राइन ग्लैंड्स, जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो स्टिमुलाई से रिएक्ट करते हैं, वैसे हमारे सिरमनस ग्लैंड्स भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एपिक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, वो फीवर में, स्ट्रेस में उनका सिक्रेशन बढ़ जाता है, उसी तरीके से सिरमनस ग्लैंड्स का भी सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एपोक्राइन ग्लैंड्स हमारे होते हैं, स्किन में मिलते हैं और आईलिड से मिलते हैं, ईयर में मिलते हैं। तो उसी तरीके से सिरमनस ग्लैंड्स भी हमें ईयर में मिलते हैं। स्किन के ग्लैंड्स होते हैं। सेकंड इज द वैक्स। ठीक है, मिक्सचर ऑफ सिक्रेशन ऑफ सेरोमिनस एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। जो हमारा ईयर वैक्स होता है वो हमारे जो सिरोमनस ग्लैंड्स होती हैं और जो सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं उन दोनों का सिक्रेशन का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी में ईयर में पाइलोसेबेशियस ग्लैंड्स मिलते हैं उनका सिक्रेशन, और सेमस ग्लैंड का सिक्रेशन। देयर आर टू टाइप्स, ड्राई एंड वेट। ठीक है, ईयर वैक्स भी दो टाइप का होता है, ड्राई और वेट। ड्राई वैक्स इज येलोइश और ग्रे, ड्राई एंड व्हाइट। ठीक है, जो ड्राई वैक्स होता है उसका येलो या ग्रे कलर होता है, वो ड्राई होगा और व्हाइट कलर का होता है। और जो वेट वैक्स होता है वो येलोइश ब्राउन होता है और वेट होता है और स्टिकी होता है। ठीक है, जो हमारा ईयर वैक्स होता है उसमें कुछ अमीनो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, फैटी एसिड्स मिलते हैं, लाइसोजाइम्स मिलते हैं और इम्यूनोग्लोबिन्स मिलते हैं। ठीक है, यानी इसमें इतनी सारी चीजें होती हैं, यानी उसका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी होता है ईयर वैक्स का। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। इट हैज अ बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। इट माइग्रेट्स आउटसाइड दैट बट मे गेट इम्पैक्टेड। ठीक है, जैसे हमारी जॉ मूवमेंट्स होती है ड्यूरिंग स्वेलोइंग और टॉकिंग, तो उसकी वजह से जो ईयर वैक्स होता है वो माइग्रेट करके बाहर आ जाता है। अगर वो कई बार सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है किसी कंडीशन की वजह से और वो बाहर नहीं निकल पाता, तो ईयर वैक्स अंदर ही इम्पैक्ट हो जाता है। दैट इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ इम्पैक्टेड वैक्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सप्लोरेटरी कैनाल इज द बोनी पार्ट। ठीक है, जो इनर टू थर्ड पार्ट होता है हमारे एक्सप्लोरेटरी कैनाल का, दैट इज द बोनी पार्ट। तो 24 mm का टू थर्ड पार्ट हुआ हमारा 16 mm। ठीक है, जो बोनी पार्ट के ऊपर की जो स्किन होती है, स्किन जो लाइन करती है बोनी कैनाल को, वो बहुत थिन होती है और कॉन्टिन्यूस होती है ओवर द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज डिवॉइड ऑफ द स्किन अपेंडेजेस, हेयर एंड सेरेब्रल ग्लैंड। ठीक है, तो उसमें जो तीन स्किन अपेंडेजेस होते हैं कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, वो इसमें नहीं मिलेंगे। ना इसमें आपको सिरमनस ग्लैंड्स मिलते हैं, ना ही पाइलोसेबेशियस ग्लैंड्स मिलते हैं, ना हेयर मिलते हैं। ठीक है, about 6 mm lateral to the tympanic membrane, bony meatus presents as narrowing called the isthmus। ठीक है, तो isthmus एक बहुत नैरो पार्ट होता है एक्सटर्नोटरी कैनाल का, जो नैरोस्ट पार्ट है एयर कैनाल का उसको बोलते हैं isthmus। ठीक है, जहाँ पे हमारे कार्टिलेजिनस पार्ट और बोनी बोनी पार्ट मिलता है, उसके ऑलमोस्ट जंक्शन पे ही एक नैरोस्ट पार्ट मिलता है। ठीक है, अगर बहुत एक्यूरेटली बोलें तो फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से 6 mm के डिस्टेंस पे। ठीक है, उसको बोलते हैं isthmus। foreign body lodged medial to isthmus gets impacted and are difficult to remove। ठीक है, तो अगर isthmus में कोई फॉरेन बॉडी जाके लॉज हो जाती है तो उसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि
isthmus is the narrowest part of the ear canal. ठीक है, और अगर लेमन में इसको बोलते हैं जंक्शन ऑफ द, इट इज फाउंड एट अ जंक्शन ऑफ द बोनी कार्टिलेजिनस पार्ट. ठीक है, इट इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑर्बिटल कैनाल. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे द रेस्ट पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्बिटल कैनाल, दैट इज द tympanic membrane. Okay, so thank you so much. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it soon. Thank you so much.